So you have to need to have some fun in life, otherwise what is life there for? So your ability to buy a car has gone up dramatically. आपकी इनकम बढ़ी है लेकिन कार की वैल्यू उस हिसाब से पिछले 20-30 साल में नहीं बढ़ी है. बट हमेशा दिल की नहीं सुन सकते ना. आपका मंथली इनकम शुड सपोर्ट द ईएमआईज, ऑल द ईएमआईज दैट यू हैव टेकन ओवर. क्योंकि एक बहुत जबरदस्त डेप्रिसिएटिंग एसेट है. आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली है और वो साल के 15 लाख रुपए तो आपके डेप्रिसिएशन में जा ही रहे हैं. आप कभी सोच सकते हो खरीदने की 1 करोड़ की गाड़ी की कितना ही सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा. Hi everybody, welcome to Road to Financial Freedom. This is our episode 2 that we have all been looking forward to. We are filming this episode to address the survey that we did about a lot of people regretting one thing: their car purchases. It was surprising to us to see so many people come up and write that they were not only regretting luxury car purchases, but any car purchases. They were regretting when they bought it, how much they bought it for, the fact that they bought it over and above their needs and wants. And so today we're here to discuss that and get an opinion from our favorite research analyst, Dad. तो हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी फर्स्ट कार कब ली, क्या सोच के ली, क्या आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे थे? What was your mentality when you were buying your first car? मेरे पास पैसे ज़्यादा थे नहीं. कुछ एक कार मुझे बहुत पसंद थी, एक पर्टिकुलर मॉडल कार थी, इंडिया में मिलती नहीं थी. तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक आइडेंटिफाई करी. एक वेस्ट बंगाल की गाड़ी थी, यहाँ दिल्ली में मिल रही थी, एक पर्टिकुलर डीलर के थ्रू. 10 साल पुरानी थी और नेगोशिएशन में उन्होंने करी नहीं, बल्कि जब उन्होंने ये देखा कि मुझे लेनी ही है तो उन्होंने अपने दाम और 10-15% बढ़ा दिए. तो इट वाज ए इम्पल्सिव डिसीजन. तो आई वाज अ 29 ईयर ओल्ड. तो ऑफिस से मुझे कार मिली हुई थी. ये मेरी पहली परचेज थी अपनी कमाई से. तो शायद मैंने जितने पैसे थे उस समय मेरे पास आधे उड़ा दिए होंगे. बट आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट. It gave me, some purpose. I was single at that time. It gave me some purpose. And मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अचीवमेंट करी है लाइफ में और मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आई उससे, और मुझे और मेहनत करने का मोटिवेशन मिला उससे. तो ये एक एंगल जो है ये बहुत लोग नहीं सोचते हैं. लोग सिर्फ सेविंग और सेव फॉर द फ्यूचर, वो सब ठीक है. वो कैलकुलेशन आप कुछ कर लीजिए कि भाई इतने परसेंटेज मुझे सेव करना है. बट ये नहीं कि सेव करते करते आप अपने एस्पिरेशंस और अपने लाइकिंग्स का गला घोट दें. तो यू नीड टू हैव ए बैलेंस, और थोड़ा अपना मज़ा भी करने में कोई बुराई नहीं है. मतलब यू नीड टू हैव सम फन इन लाइफ, अदरवाइज व्हाट इज लाइफ देयर फॉर. What did you have in mind when you bought your first car? Did you have some company, some sort of car that you wanted to buy for your family, or what kind of percentages were you looking at? Did you think from that perspective, or you were just wild, young and free and you just wanted to live it out? Yeah, so I didn't think about all this. And now that I think about it, maybe it was not the right way to do it. But I had a love for a particular brand of a luxury car, which was not available in India at that time, and only some imports were available. So I went ahead and bought a used car from the used car market, and I think I must have blown maybe 30-40% of my savings on that day on that car. But I mean, if I think about it, I really had a passion for those cars, and I never regretted that decision as such. 30-40% of your savings is a very, 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 very large amount. And the word blown away is probably right. Yeah, so as I said, maybe not the ideal decision, but one did flow a bit into, once you go see a car and you sort of fall in love with it. And then especially if you're going to buy a new car, and you go to the showroom, you see one model, then there's the next model sitting next to it, and then the next model is sitting next to it, and you keep trying to extend your budget. But for me, I mean, that was not the case, because this was a very specific car from a specific year,
and I had very great difficulty in trying to find that model. It was about 10 years old at that time, but once I did find it, I did pay whatever they wanted me to pay for it. Do you think that is what most customers find themselves in? That they fall in love with these very expensive sort of purchases and they spend a lot of their savings on it. And without having some like financial stability, emergency funds, budgets in place, they always kind of like go with the flow. It isn't necessarily the right thing to do. What are your thoughts on it? Yeah, so usually a car is a impulse purchase. Impulse maybe not so much in the sense that whether you're buying a car or not, but once you decided that you want to buy a car, which car you're going to buy becomes impulse when you go to the showroom, when you see the different variants of that model, and then the two models above that also sitting there. So the car manufacturers are extremely intelligent in positioning their products. The average car variant is positioned 50,000 rupees above the previous one, 30,000 above the previous one. So at every 30, 40, 50,000 hop, you have a new variant available. And when you're purchasing on EMI, you say that I'm going to pay 13,000. I might as well pay 14,000 and get that one, or pay 16,000 and get that one. That jump on EMI doesn't seem as much, but when you will actually sit down and calculate and see how much you are overstretching your budget, then those things may come into play. So my sense would be, one has to do their homework. One has to calculate what is their, outer limit as to where they can go, and then just draw a line. Just like, sometimes when you go to the casino, a lot of people have the rule in place that I'm going to blow $100, not more than that. And that's all I have in the pocket. If I go through that, some wins, some losses, $100 blown away, I'm getting out of it. So that the same way you need to have some cutoff in your mind. Maybe your partner or your family can offer you help in deciding that cutoff and enforcing it. But that cutoff should be there. Otherwise, you just slip into doing more and more, because the cars at the new showroom with the new smell of a new car, and it just seems so inviting. And the salesmen, auto salesmen are known for their skills, that they are going to sell you whatever you may, whether you choose it or not, but they're going to sell you one. I think why people do that is because the fact that why people want to buy a car is because of status, and the fact that it symbolizes financial freedom and independence, and your kind of, stand in your own family sometimes, because it's one of the largest purchases you're probably ever going to make other than your house. So, I think because it is so important, the fact, the impulsiveness, the urge to buy the car kind of increases, that if I buy one level above, my status in society would be much more high. But that's actually not the case if you look at it objectively, is it? Yeah, true. So, if you see the car as a functional utility item, then you will not slip into these modes of thinking of what other people think about you or your purchases. But if you are looking at, trying to be among a certain group of people, and you feel a bit out of place going with your on your two-wheeler or things of that kind, then of course and the classic example of this is the Tata Nano. Tata Nano was a great car, very cheap, very efficient, but it failed because it symbolized you as the lowest point of that pyramid, inverted pyramid, that you can only afford a Tata Nano. So the Tata Nano or the Maruti 800 were kind of seen as the poor man's cars. And if you see over time, even in Maruti or in other brands, the lowest
segment of the cars have vanished now. There's no Maruti 800. There's very little of Alto, if there is any, and people are wanting to buy cars which don't symbolize that they are at the lower level in the hierarchy. So the car, the image that the car projects is seen to be very important, and you can't deny it. Although I would say it's impractical, or one should not look at it this way. But that's how human societies work, and one wants to also feel good about it, in the sense that you may not be able to afford it, but your sort of self-confidence, or you may say sense of achievement, is there. And somebody buying an iPhone might not be able to afford it, but somehow that gives them a sense of achievement, and maybe by getting that sense of achievement, they may be able to push themselves to do more. So while one angle is to save more and try to be within your budget, the other angle could be try to earn more. If you are wanting to have these kind of luxuries in life, and then maybe that will push you to and motivate you to work harder and do more in your life. I think that's a lot to do with what Morgan Housel also said about social debt, right? That at every stage people want to kind of be the king of that stage and want to be a part of the next stage at that point. That's a never-ending cycle. But you mentioned functionality. A lot of people buy cars for functionality, but when they actually reach the showroom, they end up buying a lot of these highly operational cars with a lot of functions and this and that. That's very true. Yeah. So, that's the whole game of the automobile company and the car salesman, is to attract you by surrounding you with features, 90% of which you will never use. For instance, recently the sunroof and the ADAS has become a must-have feature in Indian cars, and in our environment on the roads. I don't think very many times you can open the sunroof. There is so much pollution. दिल्ली में कहाँ sunroof खोल के जा रहे हैं लोग? Yeah, so I've had sunroof cars for a decade or more, but I don't think I've ever used it. And now every car is just coming with a sunroof with no rhyme or reason, just more money being added. Cars are becoming more and more expensive each year. Yeah, so there is no option of not having a sunroof now. So in most cars that are now being sold, there is no option. So the additional higher cost is already inbuilt, whether you like it or not. तो आपको क्या लगता है कि आपने सेकंड हैंड कार जैसे खरीदी, तो डू यू रेकमेंड कि दूसरे लोग भी सेकंड हैंड कार खरीदें? क्या उनकी कॉस्टिंग इतना, मतलब they can buy a car at like 50% the rate, then why not? I think बड़ा लोगों को स्टिग्मा है कि सेकंड हैंड कार खरीद लेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि देखो सेकंड हैंड कार खरीद ली, नई कार नहीं खरीद सकता ये. बट मुझे ऐसा लगता है, और आई थिंक वॉरेन बफे का भी एक मैंने पढ़ा था आर्टिकल, ही ऑलवेज बाय सेकंड हैंड कार. सो मैंने भी वही फॉर्मूला यूज़ किया है पिछले 30 years में. Most of the cars that I bought for myself, for just for my fun sake, I've always bought slightly used. So 1-year-old car with 3, 4, 5, 7,000 kilometers on it, you get a deal at 20-25% off the on-road price. तो जो वो एक होता है ना, गाड़ी शोरूम से निकलते ही 20% depreciation हो जाती है. You kind of let go of that, and within 6 months, 1 year, अगर थोड़ी गाड़ी ठीक तरह से रखी हुई है ओनर ने, कुछ नहीं बिगड़ता है. तो एक मेंटल स्टिग्मा है ये कि भाई मेरी गाड़ी सेकंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है. 6 महीने के बाद सारी गाड़ियाँ उसी हालत में आ जाती हैं. तो अभी व्हाट इज द डिफरेंस? बट अ लॉट ऑफ पीपल जिनने सर्वे हमारा भरा था फॉर्म, उन्होंने बोला कि अ लॉट ऑफ देयर इश्यूज आर बिकॉज ऑफ सेकंड हैंड कार्स, की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, उनका फ्यूल कंजम्पशन हाई है. तो वो कैसे क्यों होता है? सो आई थिंक वो ये देखने वाली चीज़ है कि अगर सपोज आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, लेट्स से कि आपकी इनकम और वो सब नेटवर्क, वो सब क्राइटेरिया वाज सेइंग दैट यू कैन गो अहेड एंड बाय अ 10 लाख रुपए कार. अब 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो लोग
इस चीज़ में कन्फ्यूजन करते हैं कि 10 लाख की मैं नई गाड़ी खरीदूँ या मैं 6 साल पुरानी 30 लाख वाली गाड़ी खरीद लूँ। वो एक ट्रैप है, क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल पुरानी कोई लग्जरी कार भी खरीद रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा हाई होगी कि आपकी सारी मैथमेटिक्स बिगड़ जाएगी। वो खरीदते समय इट इज़ जस्ट लाइक दी HP प्रिंटर कार्ट्रिज, कि आपने HP का प्रिंटर खरीदा, वो 2-3 हज़ार रुपये का आ जाएगा, बट उसकी हर कार्ट्रिज के लिए फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि उस प्रिंटर की कॉस्ट के जितना ही होगी। तो वो आप उस समय खरीदते समय नहीं सोचते कि अगर मैंने कोई मर्सिडीज़ या BMW पुरानी खरीद ली और मेरे को 5-10 लाख में मिल गई, बट वो हर सर्विस पे जाएगी, 6 महीने में आपके 2 लाख रुपए लेके जाएगी, और उसका हर कोई पार्ट जब चेंज होगा उसमें लाखों रुपए लगेंगे। तो अभी कल परसों ही कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें किसी ने ऑडी A6 या इस तरह की कोई गाड़ी खरीद ली 8 साल पुरानी, पहले साल में 7 लाख रुपए लग गए उसके, उसने 10 लाख या 12 लाख की गाड़ी खरीदी। तो ये बहुत बड़ी इशूज़ है, क्योंकि वारंटीज़ रन आउट हो चुकी होती हैं और इन कार्स के पार्ट्स इजीली मिलते नहीं हैं फिर, और सर्विसेज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब जो अगर आप किसी भी लग्जरी कार के वर्कशॉप में जाएंगे तो हाथ लगाते ही 50,000 रुपये लगते हैं वहाँ पर। तो ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए। आपको सेकेंड हैंड अगर कार खरीदनी है तो अगर 10 लाख की गाड़ी खरीद लीजिए तो आप 12-13 लाख वाली की एक साल पुरानी गाड़ी खरीद लीजिए। आप सीधा ही 50 लाख वाली गाड़ी ना खरीदें जो 10 साल पुरानी हो, क्योंकि पुरानी गाड़ियां हैं होती हैं उनमें ऑब्वियसली मेंटेनेंस तो खूब लगेगी उसके अंदर। तो ये वाली गलती मोस्टली लोग करते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द सेम टिकट अमाउंट बट ए वेरी ओल्ड कार। एंड इवन जो आपने ये बात करी अबाउट दी शोरूम टैक्टिक्स एंड पुशी सेल्समैन, उनसे कैसे, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज टैक्टिक्स, कि कैसे वो ऐसे ल्योर करते हैं लोगों को कि ये वाली गाड़ी नहीं, ये बेटर वाली गाड़ी आप खरीद लो, थोड़ा सा डिफरेंस है, EMI में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए? आई थिंक डूइंग योर ओन होमवर्क, अपनी आप होमवर्क करें। आपको जो उनसे गाड़ी खरीदनी है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या प्राइसिंग है, क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं, 2-3 डीलर से बात करनी चाहिए आपको। और अगर आप न्यू खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 2-3 शोरूम्स में जाके उनकी नेगोशिएशन भी आप कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों पे कुछ एक्सचेंज बोनसेस मिल जाते हैं जब अपनी पुरानी गाड़ी अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो। इंश्योरेंस जो डीलर्स यूजुअली देते हैं वो हमेशा महंगी होती है, तो आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि नहीं हम अपनी इंश्योरेंस लेके आएंगे। और एक जो चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है कि इंश्योरेंस ट्रांसफ़र भी होती है। तो आपने अगर पिछली गाड़ी की अपनी कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करा रखी थी और अब वो गाड़ी आप एक्सचेंज कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं, तो आप वो वाली जो आपकी इंश्योरेंस थी जिस पे आपको पॉसिबली 20, 30, 40, 50% नो क्लेम बोनस मिला हुआ था, क्योंकि आपने कभी एक्सीडेंट किया नहीं और आपने कोई क्लेम लिया नहीं, तो 50% तक नो क्लेम बोनस आपका पहुंचा हुआ है। वो वाला कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेट आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं कि मैं ये गाड़ी बेच रहा हूँ, ये मुझे मेरे अपनी नई गाड़ी पे लेके जाऊँगा, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर नई गाड़ी की इंश्योरेंस सपोज 40,000 रुपये की थी पहले साल की, तो आपको 50% नो क्लेम बोनस उसमें मिल जाएगा और वो 20,000 का रह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी मनी सेविंग टिप्स हो सकती हैं न्यू कार एज वेल एज ओल्ड कार खरीदते समय। बट द मेन इशू इज़ आपको पता होना चाहिए आपको क्या खरीद सकते हैं आप और कौन सी चीज़ आपको खरीदनी है। दुकान में जाकर, शोरूम में जाकर नहीं डिसाइड करना है आपने कि क्या खरीदना है। आई थिंक वो आप सब पहले सर्वे कर लीजिए, फिर अपनी रिसर्च करिए घर पे बैठ के फैमिली के साथ कि दैट दिस इज़ माई आउटर लिमिट, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता हूँ, चाहे मुझे कितनी अच्छी लगे गाड़ी कोई सी भी। और वहीं पर आपको अपना फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ी एक स्लिपरी स्लोप है। आप वहाँ गए तो आप थोड़ा स्लिप होते चले जाएंगे, और सबकी बात है, मतलब मैंने भी बहुत बार किया है वो। तो नाउ दैट आपने बात करी कि आपको ये नंबर्स होनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, तो आप थोड़े टिप्स दें कि क्या ऐसे नंबर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए बिल्कुल सूटेड है, बजट में है, हम सिक्योरली उनसे कर सकते हैं। बिकॉज अ बिग पार्ट ऑफ परचेजिंग अ कार इज़ feeling secure in buying it. There was a survey that said that people who put a large percentage of their savings in buying their first car actually end up regretting it. So what are your tips कि लोग फॉलो करें? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई अगर बेसिक नीड है पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए, आपको बेसिक गाड़ी खरीदनी है,
तो उसमें तो बहुत ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, वो तो आदमी को कर लेना चाहिए. बट अदरवाइज फॉर योर नेक्स्ट परचेज जो थोड़ी सी मे बी मिड सेगमेंट और लग्जरी कार की तरफ, आप थोड़ा मिड एज की तरफ जब जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपकी बाकी चीज़ें कितनी सिक्योर हुई हैं. डू यू हैव सम फंड्स इन प्लेस? आर यू ऑलरेडी पेइंग EMI फॉर योर होम? कुछ इमरजेंसी फंड तो वो है ही आपका. कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने किलोमीटर्स की आपकी रनिंग है? अगर बहुत कम है तो क्या आप कोई ऊबर उससे भी काम चला सकते हैं? क्योंकि अब कार्स आर ए डेप्रिसिएटिंग एसेट, सो इन वर्सेस होम विच इज़ एन अप्रिसिएटिंग एसेट, एंड उसमें आप लेवरेज भी लेते समय आप 20% होम लोन मार्जिन दे के 80% होम लोन लेते हैं, तो वो एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री है. और यहाँ पर तो पैसे देते ही 20% तो आपके फर्स्ट डे ही डाउन है, एंड देन एवरी ईयर 10-15% डेप्रिसिएशन होती चली जाती है. तो इट्स अ लूजिंग प्रॉस्पेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. सो अनलेस यू हैव रियल यूटिलिटी कि भाई आप उसको अच्छी तरह यूज़ करेंगे, 10-15 हज़ार कम से कम साल में चलाएंगे, तब तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है लेने का. अदर देन दैट आई थिंक बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन इसमें लेना चाहिए. तो सपोज एज अ पर्सन व्हाट वुड यू रेकमेंड कि आप क्या मैथ होमवर्क करें अपने एनुअल इनकम से, अपनी सेविंग से, कैसे मतलब कुछ आइडिया भी कैसे लगाएं कि कौन सी गाड़ी हमें फिट करनी चाहिए? हमारी सोसाइटी डिसाइड करेगी या हमारा इनकम? नहीं, सोसाइटी तो कुछ नहीं डिसाइड करती है. आवर इनकम शुड डिसाइड, आवर एसेट शुड डिसाइड. तो मेरे हिसाब से आपकी नेटवर्थ की लेट्स से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गाड़ी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं तो आप 10 लाख की गाड़ी खरीद लीजिए, मे बी लिटिल मोर देन दैट. और आपकी जो एनुअल इनकम है, सपोज आपकी हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है, तो उसका 50% से ज़्यादा आप एक्सीड मत करिए. तो 10 लाख की आप गाड़ी आप खरीद सकते हैं उसमें. अब वो भी मेरी थिंकिंग ये है कि आप 20-30% डाउन पेमेंट करें, और उसके बाद आप 4-5 साल का उसमें कार लोन लें. लोग लोन लेने से कई बार ना बहुत घबराते हैं. कार लोन्स एटलीस्ट जैसे आज की डेट में 8-9% टाइप का कार लोन है, तो यू कैन यूटिलाइज, इवन इफ यू हैव द कैपिटल, यू यूटिलाइज इट एंड इन्वेस्ट इट, मे बी यू विल बी एबल टू डू बेटर देन 9% पोस्ट टैक्स. तो ये मतलब हम तो समझते हैं स्मॉल केस वगैरह वो करप करेंगे तो you'll be able to get there. So when did you think that you want to change your car again, or what is the average tenure of your car purchases that you do yourself and that you recommend to your viewers? आई थिंक ये डिपेंड करेगा कि गाड़ी आप कितनी चलाते हैं, कैसे रखते हैं, मेंटेन करते हैं, और आपकी इनकम कैसे बढ़ती जा रही है. अगर आपकी बहुत इनकम बढ़ती जा रही है और द परसेंटेज ऑफ द कार आउट गो, that EMI is getting less and less and less, so you can afford to buy a new car every few years, every 4-5 years maybe. There are people who will not change their car for even 10 years or 15 years. तो हर तरीके के लोग हैं. और आप शौक की बात है, कुछ लोगों को गाड़ी लगता है कि भाई ये पॉइंट A to पॉइंट B जाने का एक साधन है और इसमें और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट देयर आर अदर पीपल हु आर वेरी पैशनेट अबाउट कार्स, और उनको हर नया मॉडल में उनका दिल आता है कि हमें लेनी है, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चेंज. सो दैट इज़ हाउ, आई मीन, यू नीड टू सी हाउ व्हाट इज़ योर मेकअप एंड हाउ यू विल डू इट. बट हमेशा दिल की नहीं सुन सकते ना. आपका मंथली इनकम शुड सपोर्ट द EMIs, all the EMIs that you've taken over. हाँ, वो बात ठीक है. तो यूजुअली 40% ऑफ योर टोटल इनकम should not exceed, your EMI should not exceed that. तो ये thumb rules कुछ हैं जो आप follow कर सकते हैं. We've covered more about this in like our previous videos, so we will link that below. तो मैंने रूल फॉलो नहीं किए जब मेरे शुरू में व्हेन आई वाज यंग, तो मैंने ये रूल्स फॉलो नहीं किए जो बाद में मुझे लगा कि करने चाहिए. और अब जब मैं कोई कार खरीदता हूँ तो मैं सोच समझ के लेता हूँ थोड़ा सा कि 5-7 साल के लिए गाड़ी को रखेंगे कम से कम, और ऐसे ही परचेज़ करें जो मतलब थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी हो. और ऐसा मतलब मुझे लगता है कि एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर तो थोड़ा सा मे बी टू चेंज कार्स
अगेन वो डिपेंड करेगा कि आदमी का शौक कैसा है। रनिंग तो मेरी कार्स की ज़्यादा नहीं होती है बिकॉज आई ऑलवेज वर्क फ्रॉम होम। ये अभी तो कोरोना में लोगों को वर्क फ्रॉम होम पता लगा है, बट आई बीन डूइंग दिस फॉर almost 30 years now. My office and my home has always been in the same building, and so my cars don't run as much. तो बड़ी मुश्किल से मैं 5-7 हज़ार किलोमीटर अगर उस साल के चले जाएँ तो बहुत हो जाते हैं। Do not follow this, please. Run your car as much as possible. He is an exception. Do not do that. तो but yeah, I have a liking for faster cars, and I loved driving on autobahns and all those things. But yes, I mean those days are coming to an end right now. What would you recommend someone like you, for example, who's working from home, जाना ज़्यादा इधर उधर है नहीं, तो उनको कैसी गाड़ी लेनी चाहिए, या उनको ऊबर्स ओलास पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए? I think Ola Uber तो नहीं कर सकते क्योंकि I mean the kind of quality of cars and drivers and availability on call is not there. So, but there are a lot of other services where you can lease cars. So chauffeured cars can be leased out, and they are available on call. I think those can be there if you are not so passionate about driving the car or having your own car and you don't have too much to drive around. तो आप वो सोच सकते हैं क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त डेप्रिसिएटिंग एसेट है। आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली और वो साल के 15 लाख रुपए तो आपके डेप्रिसिएशन में जा ही रहे हैं, और मेंटेनेंस एंड ऑल दैट टू दैट। सो वन शुड मेक ए कॉल with some focus that yes, I am willing to blow that much money because it gives me satisfaction and I can afford it. If that is the case तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास उतने लेवल की गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और फिर भी आपने उसे खरीदी तो वो गलती है। जैसे आपने मेंशन किया 1 करोड़ की गाड़ी, आप कभी सोच सकते हो खरीदने की 1 करोड़ की गाड़ी की कितना ही सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा? Any car lover would love to go to a better car, to a better car, to a better car in their lifetime. तो मौका लगा तो मैं भी ज़रूर ख़रीदना चाहूँगा किसी दिन, बट यस अभी तो मुश्किल है। आप बताइए, आपने अपनी जो करंट गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चला ली है और कितने साल बाद आप प्लान कर रहे हैं चेंज करने का, या आपने लास्ट कार कितने साल बाद चेंज करी थी? सब कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए, वी कैन कोलेट दैट डेटा। आई थिंक कार लेने का डिसीजन एक फैमिली डिसीजन होता है, तो आपको अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए इसके अंदर। आपका अपना स्टाइल जो कार लेने का है वो एक अलग हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ द फैमिली थोड़ा अलग हो सकती हैं। अगर आपके घर में एक ही गाड़ी होनी है तो सबकी ज़रूरत उसमें पूरी हो जाए और एक कंप्लीट फैमिली कार इस तरह से आ जाए तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग रियली गुड। और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से लोग अपनी गाड़ी को ध्यान से नहीं रखते हैं, तो अपनी गाड़ी को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। यू शुड लव योर कार्स। इतनी आपने कार्स का ऐसा है कि क्योंकि डेप्रिसिएटिंग एसेट है तो आपने बहुत सारा अपना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप खो रहे हैं जब आप कार खरीद रहे हैं। जैसे अगर आप इससे बोलें कि मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली और वो कहेगा आपने 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कर दी होती, वो कंपाउंड करके 5-7 साल में कहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप गिव अप कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करनी चाहिए, वो करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑल्सो। और अगर आप पैसे इकट्ठे ही करते रह जाएंगे तो फिर पैसों करेंगे क्या? अल्टीमेटली द मनी दैट यू मेक आउट ऑफ योर इन्वेस्टिंग ऑल्सो नीड टू बिकम ऑफ यूज़ इन योर रियल लाइफ। चाहे वो आप घर खरीदें, चाहे गाड़ी खरीदें, चाहे जो बच्चों के एजुकेशन करें, उसमें द मनी दैट यू इन्वेस्ट एंड यू सेव एंड यू अर्न एंड यू कंपाउंड नीड टू कम बैक टू ए रियल यूज केस। अदरवाइज इट इज़ जस्ट पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। बट एक चीज़ है, बहुत लोग बहुत जल्दी गाड़ी खरीद लेते हैं, एकदम उनको थॉट आता है कि गाड़ी खरीदनी है, नेक्स्ट डे दे गो एंड बुक द कार। बट इफ़ दे टुक अ वाइल कि अभी क्या नीड है, क्या वांट है, उसको समझ के 2 साल में अगर वो गाड़ी खरीदे
then they can invest the money जो वो गाड़ी खरीदने में ले सकते थे, लोन ना लेकर वापस उसको ग्रो करके 2 साल वापस वो गाड़ी खरीद सकते हैं. Don't you think that's a better approach to buying a car than just impulsively buying things? आई थिंक कार खरीदना जो है बहुत सारे सालों में जो एक डिफ़िकल्टी थी पहले, वो अब नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारी EMIs और ये सब अवेलेबल हैं आपको, प्लस डबल इनकम फैमिलीज़ होने लग गई हैं. तो जो एक इशू था 10-20 साल पहले कि एक गाड़ी खरीदनी है तो बहुत बड़ा डिसीजन एक हुआ करता था घर का, कि भाई कब हम स्कूटर से, मोटरसाइकिल पे से गाड़ी पर आएंगे. वो आज के ज़माने में एटलीस्ट इन अर्बन एरियाज़ इतना बड़ा डिसीजन नहीं रह गया, क्योंकि कार्स की वैल्यू बढ़ी नहीं. जैसे मैंने आपको बताया 1996 में मैंने 5.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, एक मिड सेडान सॉर्ट ऑफ, और आज भी उसके बराबर ही गाड़ी कोई शायद 10-12 लाख रुपए की आ जाती होगी. तो 30 ईयर्स में, 28 ईयर्स में जो इन्फ्लेशन हुई है, कार्स की प्राइसेस तो उस हिसाब से नहीं बढ़ी फॉर ए मिड साइज सेडान. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ कार्स, तो योर एबिलिटी टू बाय कार हैज़ गॉन अप ड्रामेटिकली. आपकी इनकम बढ़ी है लेकिन कार की वैल्यू उस हिसाब से पिछले 20-30 साल में नहीं बढ़ी है. तो जैसे अब मतलब ये पहले जो लग्जरी गुड मानी जाती थी कार, अब एक एसेंशियल आइटम है हर फैमिली में. जैसे एयर कंडीशनर हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, ये सब अब एक कॉमन प्लेस होते चले हैं. पहले इनको बोलते थे वाइट लग्जरी गुड्स, अब ये एसेंशियल आइटम्स इन एवरी हाउस होल्ड है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो कार जो है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा नहीं है तो गाड़ी खरीदना ज़रूरी हो जाता है. एंड फ्रॉम अ सेफ्टी परस्पेक्टिव आई थिंक कार्स हैव कम ए वेरी लॉन्ग वे in terms of crash ratings, in terms of having airbags and all those safety features. तो एक ये मुझे एटलीस्ट पर्सनली ये वो लगता है कि अगर कोई आज 2 व्हीलर पे है तो और अगर वो कर सकता है अफोर्ड धीरे धीरे अपने आप को अपनी फैमिली को और सशक्त करने के लिए, तो वो अगर 4 व्हीलर में आ जाए तो वो सेफ्टी एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई रियली वुड थिंक इज़ अ बिग डील. I remember this one response in our survey said that he had to buy an SX4 for the safety of his family, even though his income at that point was barely supporting it. What do you have to say about that? Yes, I think उस केस में मैं यही कहूँगा कि used car, second car market is very good. A lot of people don't look at it because वही मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ स्टिग्मा है और लोगों को शर्म आती है सेकेंड हैंड कार खरीदने में. बट बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील्स मिल सकती हैं. ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ आई फॉर इट. थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए क्या देखना है. नहीं तो आप जो ये कंपनी की फ्री ओन्ड सेल्स होती हैं जिसमें कुछ वारंटी होती है, 3 months 6 months की वारंटी भी होती है, वो लेना बहुत अच्छा है कि आपने कार ली और आपको 3 months के लिए यू आर कवर्ड ऑल्सो फॉर दैट. बट द बेस्ट सिचुएशन एज आई मैंशन कि आप 1 साल या 2 साल पुरानी अगर गाड़ी आपको थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में मिल जाए, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल. Even Ashneer Grover from Shark Tank used to say that मैं हमेशा ही सेकेंड हैंड गाड़ी लेता हूँ क्योंकि it makes sense essentially. There are some key factors जो आपको देखने चाहिए in your purchase of a second hand car. तो आप क्या metrics या क्या ऐसी चीज़ें देखोगे कि आपका क्या कीन आया आपको बताता है कि ये तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, ये ठीक है, कैसे आप जज करते हैं? It is more of a gut feel. First of all, just talking to the person will give you some vibe. 3-6 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी गाड़ी बेच क्यों रहे हो? Maybe you go to see that car at his house and you find that another new car has been bought. Then it's kind of logical that he's selling out his old one. या वो कार में कितने ओनर्स आ चुके हैं, अगर वो 1 साल पुरानी गाड़ी है पता लगा उसमें 2-3 ओनर्स आ चुके हैं तो दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग. या आप कार की हिस्ट्री भी निकलवा सकते हैं सर्विस सेंटर से कि ये कितनी बार इसमें कोई इशू हुआ है. और सबसे बड़ी चीज़ है आप उसकी इंश्योरेंस चेक करिए, अगर उसमें कोई भी क्लेम हुआ है पिछले 1 साल में, so then you know that there is a history of accident
for this car. But if a insurance is showing no claim bonus, then at least you know कि इसमें कोई insurance claim नहीं हुआ है, and it's probably a clean car. और बाकी आपको देखने से पता लग जाएगा कि गाड़ी की upkeep कैसी है. If car is kept nicely, is probably a decent car to buy. Any other parting words that you want to tell your viewers? Anything that you want them to keep in mind? I think गाड़ी खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ी सैर भी करनी चाहिए. और especially for men, there are not so many avenues for spending money. तो गाड़ी ज़रूर खरीदनी चाहिए, मन की खरीदनी चाहिए, लेकिन टाइम पर अपने. अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं तो आप ज़ोर लगाइए, कमाइए पैसे, इन्वेस्ट करिए, मेहनत करिए, अपने आप मोटिवेट करिए, 2-4 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करिए और खूब पैसे कमाइए और फिर खूब बढ़िया गाड़ी खरीदिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड दिस इज़ अ सीरीज titled Road to Financial Freedom. We will keep doing these videos on different topics and subjects, and I hope you're liking them. Please do send us your comments and feedback. We'd like to learn from you.